So earlier we discussed about handling links. Now today we'll be understanding about handling frames. Okay. So how to write a test? Simply you just have to mention test, and then you can say handle frame, and then async page. And getting this example, so just make this to this side. Okay. Fine. So see, it is automatically giving me the suggestion, and this is because someone would have already used this example. Probably I also used this example in earlier sessions as well. And based on that, the AI has recommended me this particular. So I'm taking it, but I'll let you explain this line also, what actually it means. So in the very first line, what we did, we actually moved to this particular side, and then we know that this particular box, drag me around box, is inside this particular frame. That we have already understood what is frame, and why we have to handle frames. So that we know. So what we do, right click and inspect, and we can see that this is iframe tag and having a class as demo frame. The class को CSS में कैसे लिखते हैं, dot से, right? Dot and then the class name. So the same thing we are doing over here, page dot frame locator. Now this is the method actually to locate the frame. Okay, so page dot frame locator. Normally हम लोग सिर्फ locator लिखते हैं, right? Normally हम लोग locator लिखते हैं for element, normal elements. But for frame it is frame locator, and then the class name I'm doing over here. And I'm storing that in frame, const frame. Okay. Let me just close this part so that the error goes away. फ्रेम जो है वो कांस्टेंट रहेगा, इसीलिए कांस्ट लिया है सर. हाँ, फ्रेम में जो भी जनरली देखो, जब हम लोकेटर आइडेंटिफाई करते हैं या एरो होता है, ऑब्जेक्ट होता है, हम उसे जनरली कॉन्स्ट ही रखेंगे. ऐसे वेरिएबल्स को हम उसके आगे लेट यूज करेंगे जहाँ पे वी वांट द वेरिएबल वैल्यू टू चेंज. जैसे फॉर लूप होगा, फॉर लूप में कॉन्स्ट यूज नहीं करेंगे, हम लेट यूज करेंगे. सर अगर कांस्ट यूज नहीं करेंगे तो क्या डिफरेंस रहेगा सर? यहाँ पे कोई डिफरेंस नहीं रहेगा, आप लेट यूज कर लो. डिफरेंस तब आएगा जब अगर आप फ्रेम के आप दोबारा फ्रेम को यूज कर सकते हो और उसमें दूसरी वैल्यू स्टोर कर सकते हो. अभी फिलहाल हम नहीं करेंगे, एज सच कोई डिफरेंस नहीं आएगा. लेकिन प्रैक्टिस आप कहो या स्टैंडर्ड्स कहो, जनरली हम जब भी किसी एलिमेंट को लोकेट करेंगे तो हम चाहते हैं कि वो एलिमेंट का लोकेटर यूनिक होता है, राइट? ऑब्वियसली यूनिक होता है और मैं उसको चेंज नहीं करना चाहता, तो मैं उसे जब वेरिएबल में स्टोर कर रहा हूँ तो उस वेरिएबल को मैं कॉन्स्ट ही करूँगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कभी भी प्रोग्राम में आगे चल के भी कोई वो पर्टिकुलर नाम से दूसरी वैल्यू लोकेटर उसको स्टोर कर. जैसे आपने यहाँ पे फ्रेम दिया है, हो सकता है कोई दूसरा टेस्टर हो, वो भी फ्रेम नाम सोचे एज अ वेरिएबल और वो यूज़ करे, तो ही मे ऑल्सो यूज दिस पर्टिकुलर वेरिएबल. तो लेट होगा तो आप उसको रीअसाइन कर सकते हो, कॉन्स्ट होगा तो नहीं असाइन करते. दैट इज ओनली. तो एक प्रैक्टिस बना के रखो कि यहाँ पे कॉन्स्ट ही लिखना है जब भी आप लोकेटर, ऑब्जेक्ट ये सब यूज करो. So with this line we have located the frame. So this is the frame. Okay, the outer box is the frame. If you can see, that is the outer box. अब वो frame के अंदर we have this particular element, right? Of this element, that is ID is draggable.
I'll just copy this, एंड अब हमें पेज नहीं लेना है, राइट? हमें पेज नहीं लेना है, हमें क्या लेना है? फ्रेम लेना है. Is again giving me suggestion, I'll accept it. So we'll say frame dot locator. So we have identified the frame. Using that frame, I'm locating the element wherein draggable is an ID. So hash sign. And then I'm storing in a draggable variable. Now, what is my objective? To move this particular element. Okay. So drag the element. I will just say draggable. Okay. Again, it's giving me some suggestions, so I'm accepting it. So I'm saying draggable dot drag to. Okay, similar आपको सेलेनियम में भी मिलता है. तो draggable dot drag to क्या लेगा? It takes target. Any question? सर ये ड्रैग फ्रॉम होना चाहिए. ड्रैग टू है ना, मतलब मुझे ड्रैग फ्रॉम नहीं, ड्रैग टू मतलब कहाँ तक ले जाना है ड्रैग करके. ओके सर. सो ड्रैग टू, सो इस एलिमेंट को मुझे ड्रैग करना है, तो दिस एलिमेंट डॉट ड्रैग टू एंड वेयर डू आई हैव टू ड्रैग to the target location. So target again is draggable only because वो particular element को भी मुझे लेके जाना है, तो target again is draggable only. And then you have like XY position. So target position इसको देनी है, ना कि source position. We have two things: source position and target position. So ये आप question mark देखोगे, that means it's a optional parameter. ये सारे optional हैं, तो we are giving target position because हमें target position को लेके जाना. अगर दो चीज़ें होती है, सोर्स से टारगेट दोनों चीज़ मेंशन करनी होती है, तो यहाँ से मुझे यहाँ लेके जाना है, तो देन आई हैव टू मेंशन बोथ द थिंग्स. सो राइट नाउ आई जस्ट टू टारगेट पोजीशन. ये कर्ली ब्रेसेस के अंदर आएगा, कर्ली ब्रेसेस टारगेट पोजीशन कोलन एंड देन एक्स एंड वाई पोजीशन. Let's say 151. And yeah, that's it. So let's run this code and see if it works perfectly fine. So it actually dragged to that point. जो भी आप पोजीशन दोगे वहाँ पे वो ड्रैग. If I just close that browser, that's the reason. Then it doesn't actually drag to that particular. So that is how you can handle the frame. So basically, you have to remember this method, frame locator. So instead of simple locator, you have to mention frame locator. Then you have to use the whatever class name or ID or whatever XPath, CSS selector. Let me write. इसमें फ्रेम के लिए दूसरा भी एक तरीका है. So this is one way, okay. Page dot frame locator is a method जिसमें आप क्लास नेम से हम लोग लोकेट कर रहे हैं. Whereas we also have this method frame. Okay, one can access frame objects using page dot frame API. So we have frame method also, which again name attribute अगर आपको मिलता है, say for example in this case आई फ्रेम में अगर मुझे नेम एट्रीब्यूट मिलता है, ठीक है, अभी तो क्लास है, बट अगर नेम एट्रीब्यूट होता तो फिर हम लोग ये यूज़ कर सकते थे फ्रेम मेथड, और फिर जो भी नेम एट्रीब्यूट की वैल्यू होती वो मुझे पास करनी होती, राइट. वैसे उस तरह से वैसे ही गेट फ्रेम यूजिंग फ्रेम्स URL
सो स्पेसिफिक अगर कोई यूआरएल है और उसमें पूरा फ्रेम फ्रेम के अंदर है वो, इतना ज़्यादा यूज़ नहीं होगा, बट हाँ नेम आपको एट्रीब्यूट मिल जाएगा फ्रेम टैग में और आप डायरेक्टली उसको यूज़ कर सकते हो, एंड देन यू कैन इंटरैक्ट डायरेक्टली फ्रेम डॉट बेसिस फ्रेम डॉट फ्रेम और इसमें जो भी एलिमेंट। So these two things you have to remember. एक तो डायरेक्टली आप फ्रेम से कर सकते हैं या फिर फ्रेम लोकेटर से कर सकते हैं, ठीक है। These two things are there. Now let's understand hovering over a element. अगर मुझे माउस ओवर करना है इसमें तो हाउ टू डू द माउस ओवर, इट्स क्वाइट सिंपल। लेट्स अंडरस्टैंड। Just taking the example is giving you know going with that particular site. Trackable or homepage also. And video details also should be fine. And contribute, right? So right click on contribute, inspect. So it is a text. टाइपस्क्रिप्ट में जैसे सोर्स और टारगेट ऐसा नहीं है सर? सोर्स और टारगेट हो सकता है ना, आप अगर ड्रॉपेबल वाला पोर्शन लो इसमें भी सोर्स नहीं है, लेकिन ये ड्रैग में टू माई टारगेट है, तो दिस इज योर टारगेट एंड दिस इज योर सोर्स। तो अगर सोर्स एक्स वाई पोजिशन है आपके पास तो आप दे सकते हो। अभी फिलहाल हमारे एग्जाम्पल में सेट नहीं हो रहा है सोर्स वगैरह। And this is like playwright method, okay? ये जो है this is playwright method, not to do anything with text. So locator and then drag to whichever is the target और जो भी आपको एलिमेंट लेके जाना है मूव करना है वो उसका लोकेटर आएगा, and then we have different options are very curly braces. To understand about this contribute, right? So contribute is nothing but a anchor tag में text, right? I'll just copy this. Now if you remember हमने we understood about playwright locator strategies also. So what we can do is we can say await, or let me just say page dot get. So these are playwright methods, right? Get attribute, get by all text, get by label. We have this method also, get by text, right? So let's say get by text. And what is the text? Contribute. And then we have to do a mouse over on it. Simple. Until this part. So we are moving to particular website, and then we have identified the element, and then do the mouse over. Now hover is giving me a promise. So in that case, I will be using await keyword. So यहाँ पे अगर आप देखो तो मैंने await यूज नहीं किया है। The reason is कि locator method या frame locator method ये आपको promise रिटर्न नहीं करेगा, it returns you locator itself. वैसे फ्रेम लोकेटर मेथड भी आपको प्रॉमिस नहीं को लोकेट फ्रेम लोकेटर देगा, प्रॉमिस रिटर्न नहीं करेगा, एंड दैट इज द रीज़न हम लोग यहाँ अवेट नहीं लिखते। तो अवेट वही लिखना है जो भी मेथड आपको प्रॉमिस रिटर्न करेगा, ठीक है। प्रॉमिस एज इन नॉर्मल सिंपल उसमें प्रॉमिस आप समझो कि प्रॉमिस टू परफॉर्म दैट एक्शन, वंस दैट एक्शन इज परफॉर्म प्रॉमिस विल बी रिटर्न, एंड देन वी आर अवेटिंग फॉर दैट प्रॉमिस टू रिटर्न। वंस दैट प्रॉमिस इज रिटर्न we'll move to the next one. This is the symbolic way to
answer these keywords. Okay. So let's run this code and see if it is covering or not. So you can see it has hovered on that contribute and the entire submenu elements have been identified. Then you can identify the sub element, locate that element, and then you can perform click action or whatever action you want to perform. The simple matherizing over. Okay, simple matherizing over. You have to. I hope this is clear. Right? Understood? Sir, sir, please explain the first part of this program. This one, frame locator one, or this one? Yes, sir. Frame The locator? first one, the locator one, frame locator. Frame locator. Okay. So frame locator is a method. Okay. Frame locator is a method through Okay. which you are identifying the frame. तो ये तभी यूज करना है जब आपको फ्रेम को लोकेट करना है, किसी भी फ्रेम टैग को लोकेट करना है, तब आप सिंपल लोकेटर मैथड यूज नहीं करोगे, फ्रेम लोकेटर मैथड यूज करोगे. अभी हमने देखा ना यहाँ पे प्लेराइट की वेबसाइट पे वी हैव टू ऑप्शंस अवेलेबल, राइट. वन इज फ्रेम लोकेटर मैथड एंड द अदर वन इज सिंपल फ्रेम मैथड. तो सिंपल फ्रेम मैथड कब यूज करना है, जब आपके पास नेम एट्रीब्यूट हो, यानी आई फ्रेम टैग है, उसमें नेम एट्रीब्यूट और नेम की कोई वैल्यू हो, नेम एट्रीब्यूट, तो वो वैल्यू आपको इसमें पास करनी है. ठीक है. तो फ्रेम मेथड से भी आप लोकेट कर सकते हो, फ्रेम लोकेटर से भी लोकेट कर सकते हो एलिमेंट को, और ये मेथड आपको रिटर्न एक फ्रेम करेगा. तो इसलिए हम लोगों ने नाम फ्रेम दे दिया, आप नाम कुछ भी दे सकते हो. और उसके बाद फिर उस फ्रेम के अंदर जो भी एलिमेंट्स होंगे वो हमें फ्रेम डॉट करके करना है, ना कि पेज डॉट करना, क्योंकि दैट एलिमेंट इज नॉट पार्ट ऑफ पेज, दैट एलिमेंट इज पार्ट ऑफ फ्रेम. उस पर्टिकुलर फ्रेम का ये नाम जो भी आप दोगे वही नाम आपको यहाँ पे भी पास करना है, उसी से आपके बाकी सारे मैथड्स भी कॉल होंगे. आई होप दिस इज क्लियर नाउ. Yes, sir. Actually, the way you found that X and Y, I just want. अच्छा, दिस इज रैंडम पोजीशन है आपकी. अगर आपको इसको देना भी है तो ये अगर आपको यहाँ पे हमने सेगमेंट कैसे किया, सेगमेंट इंस्पेक्ट and then you have style. Okay, position, this one left and top, right? So it's like 296 something 300 almost and 10 pixel. So that is your XY position. Yes, sir. Represents Y and left represents X. So ये आप try करके. So we have understood about this mouse over. Some basic programs and focusing. Checkbox related. Checkbox again. We have this. Sir, sorry to interrupt again. For each loop के जैसे for off loop के लिए जैसे for each loop भी होता है सर. That's हाँ, for each loop होता है. सर वो यूज होता है ज्यादा? करने के लिए कर सकते हैं, लेकिन उसमें फिर एरे डॉट फॉर ईच करके करना रहता है, वो थोड़ा सा डिफरेंट वे है लिखने के लिए. बाकी फॉर ऑफ अगर आप देखोगे तो ज़्यादा मैक्सिमम यूज में आता है. और अगर आप एआई से जनरेटेड जो कोड होता है उसमें भी आप फॉर ऑफ का ही देखोगे एग्जाम्पल. फॉर ईच उतना नहीं आएगा, बट करने को कर सकते हैं फॉर ईच से भी. इट्स गोइंग टू गिव यू द सेम रिजल्ट. This out and I'll say await restart go to, and instead of Amazon I'll set this checkbox. Browser and checkbox.
चेकबॉक्स में कुछ है नहीं, यू जस्ट हैव टू आइडेंटिफाई द एलिमेंट and locate. Same goes for radio button, and then perform a click action. Click is nothing but a method. Okay. तो यहाँ पे फिलहाल मुझे यही चीज़ करनी पड़ेगी, क्योंकि ये भी फ्रेम के अंदर ही है. फ्रेम को लोकेट कर लेते हैं पहले. If you right click on this 2 star and inspect it, now you can see this is a span tag. Class. Yes, span having a class this particular thing, and it is representing this checkbox. Chalo, now I'll give you a task. You have to create XPath or CSS for this particular element. ये span tag का आपको XPath या CSS जो भी बनाना है आप बनाओ. You can open this website and in the message chat, Sir, just it would be double. try it out in your laptop. Okay. Send me the email chat box. आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और कॉन्फिडेंस भी हो जाएगा. Okay, well it's done. Share the in the chat group. Done, sir. Is it giving you unique locator? Did you try that also? So Sanya, it's giving you 1 of 11, right? Yes, sir. It should give you unique, right? 1 of 1. So right now you have used XPath, XPan, and then at the rate class and all the classes I have mentioned. But this is giving you 1 of 11. So that means Okay. there are other 11 elements also with this span tag. So you have to have a unique element identified.
एनिमल के आप मुझे बताओ, ऐसे बता दो कि आप क्या ट्राई कर रहे हो, क्या लॉजिक सेट कर रहे हो, तो कैन हेल्प यू विद दैट आल्सो। सर मैंने मोबाइल से ज्वाइन किया ना, तो आई एम अनएबल टू डू इट। हेलो, ट्राई करो लैपटॉप से करने का, बिकॉज मोबाइल भी वैसे तो आपको बहुत छोटा दिखेगा। मनस्विता, आप बता सकते हो कोई लॉजिक इसमें, हाउ टू आइडेंटिफाई दिस एलिमेंट यूजिंग एक्सपार्ट? ट्राई करती हूँ। So other than this session also you guys are practicing, right? Practice नहीं करोगे तो नहीं आएगा ना automation. It's not like manual. I think Sir, I've been practicing. okay, good. Practice important है because automation ऐसे ही सीख सकते हो, और जितनी गलतियाँ करोगे उतना अच्छा है frankly speaking. अगर गलती करोगे तो आपको पता चलेगा कि भाई यहाँ गलती की और इसको इस तरह से लिखते हैं, तो वो याद रहेगा। गलती कर रहे हो तो अच्छी बात है, कोई गलत नहीं। ठीक है, मैं चलो आपको बता देता हूँ किस तरह से आप कर सकते हो। मल्टीपल ऑप्शंस आर देयर, बट Sir, again I've sent next one. contains, okay, contains. Have you showed that he's ये one of one दे रहा है आपको ट्राई किया? Sir, actually मेरे इसमें 1 of 1 ही दे रहा था। अच्छा, ये भी वन ऑफ Okay. कंटेंट्स है, और एट द रेट क्लास, ये क्लास बहुत जगह यूज होती है, तो फिलहाल हम लोग क्लास से नहीं जा सकते। द रीज़न इज, एक तो मल्टीपल क्लासेस हैं और ये सारी क्लासेस बेस्ड ऑन दिस रिजल्ट वी कैन से दैट इट हैज़ बीन यूज्ड मेनी प्लेसेस है ना। आप यहाँ पे देखो यूआई चेकबॉक्स रेडियो है, यहाँ पे भी यूआई चेकबॉक्स रेडियो है, यूआई चेक आइकन है, कहीं और भी होगा इंशाल्लाह। तो अभी हम फिलहाल इससे नहीं जा सकते। देखो मैं ट्राई करता हूँ इससे, लेबल से और फॉर रेडियो 1 से। फॉर इज अ एट्रीब्यूट ऑफ दिस लेबल टैग, तो मैं क्या करूँगा, मैं लिखता हूँ लेबल लेबल एंड देन फॉर एट्रीब्यूट इक्वल्स विद इन सिंगल कोट्स I'll say radio -1, so it is giving me 1 of 1। तो इससे मुझे आइडिया आ जाएगा कि भाई ये तो ये एलिमेंट यूनिक है, दिस एलिमेंट इज यूनिक, बट मुझे यहाँ से स्पैन टैग पे जाना है, एंड दिस इज द वे ऑफ राइटिंग इन CSS। you have to mention tag name, attribute name equals value। अब यहाँ से मुझे स्पैन पे जाना, तो what I have to do, I'll just give space and then say span। अब मैं स्पैन पे पहुंच गया, बट वी हैव टू स्पैन, राइट? वन इज दिस वन स्पैन, दिस इज अनदर स्पैन। So 1, 0 और 1। बट वो एक्सपार्ट होते हैं, एक्सपार्ट भी वैसा रहता है, बट यहाँ पे CSS है तो क्या आएगा, nth चाइल्ड ऑफ 1, ओके, nth चाइल्ड ऑफ 1, या फिर फर्स्ट चाइल्ड भी लिख सकते हैं, फर्स्ट चाइल्ड। So that is your span tag identified 1 of 1। This is your CSS। Okay, you can do that different way also। आप देखो यहाँ पे इनपुट टैग है, इनपुट टैग में आपको नेम दिख रहा है रेडियो 1 या ID दिख रहा है रेडियो 1, तो आप इसे आइडेंटिफाई कर लो और यहाँ से फिर रिवर्स में जा सकते हैं, एक्सपर्ट जा सकते हैं, क्योंकि ये जो लेबल, ये जो इनपुट है और ये लेबल है, ये सिबलिंग है, ये दोनों सिबलिंग है, तो आप प्रीसीडिंग सिबलिंग से जा सकते हो इसके ऊपर। सॉरी आई वाज ओवर। तो ये रेडियो 1 आप ID ले लो, इसके थ्रू प्रीसीडिंग सिबलिंग यहाँ जाओ, और प्रीसीडिंग सिबलिंग के बाद फिर दैट विल बी अनदर वे आल्सो।
तो ये प्रैक्टिस करो इसकी, इसी तरह से आपको आइडियाज आएंगे कि किस तरह से आप ट्रैवर्स कर सकते हैं. So anyways, let me take this one, I'll copy this, and what I'll say frame tha, right? Frame dot locator, and I'll pass the value over here, and then I have to perform a click action. That is the issue. Okay, double quotes then. Then I have to use await over here, right? So whenever you use this method, click method again is giving you promise or returning you promise. Top await. Chalo, so let's try this and see if it is working fine. Right? So it didn't actually click on it, right? Let's see if it has touched. Last of the button click. Identify this one. Such a person. So ये for radio 1 आ गया है. Radio click here. For radio 1 this will be yours. For checkbox, right? This key checkbox. So anyways, radio 1 के लिए ये आएगा और checkbox. So you have understood about radio button. So radio button के लिए भी click method ही है, checkbox के लिए भी click method. And simple button के लिए भी click है, image के लिए भी click है. Just sure, click it. Now one more thing I would like to say, जैसे अगर आप यहाँ पे changes करते हो आपकी क्लास में, टेस्ट में, तो you have to keep on saving your file. Otherwise, what will happen? Save नहीं करोगे और run करोगे, तो it won't take your existing or current code, है ना, जब तक save नहीं करोगे. There is an option of file, and then you have auto save selection. तो ये auto save पे click कर देना, which will make your program saved the moment you write. तो उससे क्या बार बार आपको सेव का याद रखने की भी जरूरत. चलो, so what we are interested today, frame handling, mouse over checkbox. Okay, we also can take screenshot, okay, capture screenshot और full page screenshot और specific element का भी screenshot ले सकते हैं. तो दो चीज़ें, एक तो playwright config.ts में you have screenshot as a option over here, जैसे use करके जो आपको दिखेगा यहाँ पे, वहाँ पे you have like trace already mentioned. You can give enter and then you can say screenshot. It will give you option. So I'll just say screenshot. And within single quotes. And you can see different options coming up. You have off, on first failure, only on failure. तो नाम से आपको आइडिया आ जाएगा. ऑफ मतलब स्क्रीनशॉट ऑफ लेंगे, कोई भी स्क्रीनशॉट नहीं लेंगे. ऑन मतलब वो हर चीज़ का स्क्रीनशॉट लेगा, हर टेस्ट का, हर पेज का. ऑन फर्स्ट फेलियर मतलब जब आपका पहला कोई फेलियर होगा, कोई टेस्ट असर्शन फेल करेगा तो वहाँ पे आएगा. ओनली ऑन फेलियर मतलब सिर्फ फेलियर में अगर टेस्ट पास हो रहा है तो स्क्रीनशॉट नहीं देगा, राइट. तो यू कैन हैव दिस ऑप्शन ऑल्सो सिलेक्टेड. अब ये जो चीज़ है, दिस इज योर फॉर द एंटायर प्रोजेक्ट.
लेवल है ना, पूरे प्रोजेक्ट लेवल के लिए है। ये सेटिंग्स जो भी आप playwright config.ts में जाओगे, ये कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग्स आपके पूरे प्रोजेक्ट के लिए। बट से फॉर एग्जांपल आपको स्पेसिफिक एलिमेंट का या उस पर्टिकुलर कोड में आपको स्क्रीनशॉट कैप्चर करना है। जैसे अभी फ़िलहाल मैं इस पर्टिकुलर URL पे हूँ, ये पेज पे हूँ, तो मुझे इसका स्क्रीनशॉट कैप्चर करना है। तो यू कैन जस्ट से वेट पेज डॉट screenshot, okay, screenshot, and then there are two things, okay, one is path, okay, you have to give the path, और दूसरा आपको फुल पेज स्क्रीनशॉट चाहिए। जिससे बहुत बहुत क्या होता है कि जैसे ये वेबसाइट है और इसमें कुछ सेक्शन है, जो यहाँ का जो सेक्शन है इट इज़ कमिंग बाय स्क्रॉलिंग डाउन, राइट। तो मुझे पूरा का पूरा पेज का स्क्रीनशॉट चाहिए। आई वांट टू हैव दीज थिंग्स आल्सो कैप्चर्ड जस्ट फॉर सम पर्टिकुलर पर्पस। उस केस में आपको फुल पेज करके ऑप्शन होगा, उसको ट्रू करना रहेगा। तो दिस इज फॉर पेज स्क्रीनशॉट। आपको सिंपली स्क्रीनशॉट और फिर पाथ देना है, तो वी विल से पाथ एंड देन कोलन से फॉर एग्जांपल screenshot.png एंड देन दिस एक्चुअली विल बी कमिंग एंड यहाँ पे कॉमा करके फुल पेज ये screenshot.png आपके यहाँ पे प्रोजेक्ट में इस लेवल पे आ जाएगा और सेव हो जाएगा। अगर आपको स्क्रीनशॉट करके फोल्डर चाहिए तो देन यू हैव टू से डॉट स्लैश स्क्रीनशॉट स्लैश, तो ये स्क्रीनशॉट फोल्डर ही बनेगा, उसके अंदर आएगा। लेट मी जस्ट रन दिस। Click on this checkbox, close it, and you can see screenshot folder came up and उसमें screenshot.png file generated, which is nothing but your entire page screenshot. Okay, so this is how you can take a screenshot. ये इंटरव्यू में आपको पूछ भी सकते हैं कि if you want to take a screenshot, what are the different ways. तो आप प्लेराइट कॉन्फ़िग का भी बता सकते हो। अगर प्रोजेक्ट वाइड आपको रखना है कॉमन सेटिंग्स तो आप प्लेराइट कॉन्फ़िग में रखोगे, लेकिन स्पेसिफिक टेस्ट में आपको स्क्रीनशॉट कैप्चर करना है तो इन दैट केस यू हैव टू कॉल दिस स्क्रीनशॉट मेथड। यू हैव टू प्रोवाइड द पाथ एंड देन अगर पूरा फुल पेज लेना है तो फुल पेज ट्रू, अगर नहीं लेना तो ये हटा देना या फॉल्स कर देना। तो जितना भी पाथ आपका जो जितना भी पेज आपका विजिबल होगा that portion will be okay. एंड अगर स्पेसिफिक आपको एलिमेंट का स्क्रीनशॉट चाहिए है ना, जैसे अभी से फॉर एग्जांपल दिस इज वन एलिमेंट राइट, फ्रेम डॉट लोकेटर एक एलिमेंट है बॉक्स हमारा, उसका स्क्रीनशॉट चाहिए तो आप कहोगे ड्रैगेबल स्क्रीनशॉट and then you have to again give the path, something like this. Okay, तो ये एलिमेंट का स्क्रीनशॉट होगा। अच्छा, इसमें फुल पेज नहीं आएगा बिकॉज ऑब्वियसली वो पर्टिकुलर एलिमेंट का ही स्क्रीनशॉट मिल जाएगा, राइट। ये चीज़ थोड़ा सा याद रखना है। सेम वे वीडियो का ऑप्शन भी है यहाँ पे आपके पास। आप यहाँ पे कॉमा करके कॉमा दे दो एंड एंटर वीडियो लिख दो, and then you have single quotes and all the options will come off, on refresh, first refresh. These are different options when you want to capture a video. अगर आपने हमेशा ऑन रखा है दैट मीन्स वीडियो हमेशा आएगा जब भी आप टेस्ट रन करोगे, वेदर इट इज़ फेलिंग पास गेटिंग पास्ट, वीडियो आपका ऑन रखना ज़्यादा अच्छा है। बिकॉज अगर आपको
इवन पास भी हो रहा है, अगर आपको प्रूफ चाहिए कि भाई ये पर्टिकुलर एक्शंस हुए थे, एज अ प्रूफ यू वांट टू हैव अ बैकअप, you can take a video of same. Okay. And later on you can send that also as part of your report. That HTML report या फिर अन्य रिपोर्ट हम बाद में सीखेंगे, तो आप आपके मैनेजर्स को शेयर कर सकते हैं. Okay, so these are configurated things. Fine. तो यहाँ तक रखते हैं आज के लिए. We understood about handling frames, handling mouse over checkbox radio button, screenshot capturing. Later on, we'll understand about how to handle shadow downing and other configuration related things. This will be gradually will move towards relatable. So it's a practice we're doing it, and I would suggest you can go through this playwright box. There are a number of things over here. You can go through it. आप खुद भी अपने लेवल पे थोड़ा इवैल्यूएट करके एक्सप्लोर करके जान सकते हो चीज़ें. ठीक है, इट इज़ वेरी गुड डॉक्यूमेंटेशन. So I'll end this meeting.